जय श्री माता जी। सहयोग के सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। 30 मई 2025 अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सहयोगा 4 बजे सुबह प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण। जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे।
पूज्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें संतुलन अवस्था प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे।
we all have today gathered here on top of this beautiful mountain to celebrate the resurrection of Christ. It's very significant for Sahaja Yogis to understand the great event of his resurrection, by which he showed that the spirit does not die. He was the Omkara, he was the Logos, and he was the spirit. And that is why he could walk on the water. And also, now we have made a film where we have shown how the Muladhara, which shows the carbon atom, has clearly, if you see from right to the left, you find a proper swastika there, and left to the right, we see Omkar. But when you see from down below upward, what you see is Alpha and Omega. That proves beyond doubt that Christ, as he said, I am the Alpha and I am the Omega, shows clearly that he was the incarnation of Sri Ganesh. It's scientific proof we have now with us, and that's how we can tell people that it's a fact. I don't know at the time of Christ, this Alpha and Omega was known to the mathematicians, but definitely to him when he said, I am the Alpha and the Omega. His was an incarnation, very remarkable and very important for our ascent. If he had not resurrected himself, we could not have achieved our ascent at all. So it's a great contribution. The resurrection of Christ is evident now in your own life. What you were before and what you are today. It is such a change, such a difference, such a transformation. It is his own sacrifice on the cross and his own beautiful resurrection has created a way for all of us to get into this new transformed state. In this state is a different story for human beings and a different for Christ. Christ was himself, was holiness or purity. So, his resurrection is nothing but just a physical happening, we can say, because he did not need transformation. He did not have to go through any cleansing. But what happened in his case was that he became resurrected from death. Symbolizes the life of human beings without spirituality is like a death. Because they do everything without any understanding about the totality, about the reality, about the absolute truth. Whatever they do ultimately takes them to their destruction. Even the religions which are established
by these great incarnations are absolutely on a decline. You do not find any trace of religious life with all those people who claim that they are the ones who can represent those incarnations. If you see in a subtle way, it's very painful also that in the name of all these great incarnations, the kind of work people are doing, the activities that they take to, is something impossible because they have no fear of God. In the name of God, they are doing all these horrible things all over the world. Of course, here you can say Catholic Church has been exposed. Everywhere people are seeing all these false things have been exposed. But these false things they have used under a garb of God, spirituality and beauty. That's the best way you can hide all the cruelty, all the violence, all the ugliness. This is how they have worked it out. And it has gone into such a state that you do not find the slightest even tinge of religious life among these people. Like all the thieves of the world, all the great crooks of the world, and all the intriguers of the world have taken over. It's only because what was written in all the books, on all the scriptures, that you have to seek yourself, was never done. You have to know yourself, was never done. How many times Christ has said, know thyself. He also said that you are to be born again. So immediately they take a certificate, I am born again, and start taking advantage of that kind of a certificate. But they don't think that actually what benevolence it has given them. At the most they might have made some money, at the most they might have had some superficial powers. But it has done nothing, if you see, from innate nature. One must pity their insanity, the way they have taken to Christ's life or to anybody else's life of such a noble and a higher value system, and are doing all very low-graded things. In Sahaja Yoga now, you have transformed yourself. I would say your Kundalini has done the job. But still, the difference between Christ and you is this, that you are coming from that environment, that style of life, that kind of thinking, which was all for your destruction. Everything, if you see now, is for your destruction. So when you are coming out of it, still these things hang over. Still you get affected by them. Even when you are rising higher and higher, you find suddenly you are again pushed down to some sort of a funny situation, to some sort of a degrading things. Of course, sometimes you are shocked at yourself. Sometimes you accept all that. So for a Sahaja Yogi, it is very important that after coming to realization, he has to be very introspective. Instead of seeing the bad of others, he should try to see what is bad within himself. It's very important that you have to know how far you are going towards your spirituality. Because Christ did not need this. He did not have to even introspect himself. He was something which was beyond any corruption. And for him, it was just a physical transformation
or the sense that from he died and then he resurrected himself. But for us, it is very different. We are now Sahajogis, but we were ordinary human beings. We had no light within us. Now the light comes within us and we see the light. Then what do we become? We have to become the light itself. Christ was the light. He did not have to become. But we have to become the light. And now you have to guard on the way this light might get disturbed, might be reduced, or maybe completely extinguished. So carrying on yourself with this light, first thing you should know that if you see the light is not proper, means you are not the light. You have to become the light. When you are the light, then in that light you can easily see how your mind works, what ideas it gives, what affects your mind while you are ascending. Is this the worry, or is this the responsibility that you have, or is this from the bad habits you had, that there is an impediment in your growth as a spiritual personality? So you have to guard yourself all the time and see for yourself how you are progressing. It's a very beautiful journey, very, very beautiful journey. Yesterday I was very much happy to hear the song of the Russians who describe about the journey of Kundalini. This is true, no doubt, that you are a realized soul. Basically, you were not a realized soul. But now, you are a realized soul. You are an evolved state. Now, what is missing is the idea that we are absolutely all right and nothing can harm us, nothing can bring us down. If you develop such a egoistical idea, it's not going to help you at all. What you have to do is to all the time introspect yourself. That's what is meditation for. To see for yourself how you are keeping up your spiritual ascent. No one else can do it. It's your own individual work. Of course, if you go to the collective, immediately they will know what chakras you are catching. No doubt. They may not say, they may not refer it, but they will know definitely that such and such chakra is catching and this person has this problem. But they won't know themselves what they are catching. What is their problem is. So if somebody tells you that I think this chakra is catching in you, you should never feel bad about it. Because by keeping that chakra intact, you are ruining your own life. So what you have to do is to see that if somebody tells you that I think this chakra, is there something wrong, you should thank that person, thank what you have told me. Like a mirror. बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस और इतना प्रेम पहुंच रहा है परमेश्वरी का। आप अगर यहाँ शेयर करेंगे वही प्रेम तो सब तक पहुंच जाएगा, पूरे विश्व में पहुंच रहा है ये प्रेम आप लोगों के माध्यम से। तो पर्सनल पे तो आप लोग बहुत कुछ मुझे बताते हैं, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ भी शेयर करें कैसे आपके अनुभव आ रहे हैं, कैसा आपको
महसूस हो रहा है, और क्या वाकई ये सहज योगा 2.0 सब तक पहुंचना चाहिए कि नहीं? सबका हक है ना? ये सबका अधिकार है। ये अधिकार परमेश्वरी ने हमें दिया है ना, कि हम इसको महसूस और हम माध्यम बने ये प्रेम सब तक पहुंचने का। तो प्लीज आप लोग शेयरिंग बिल्कुल मत रोकिए। पर्सनल पे आप करते हैं, यहाँ भी कीजिए, तो फिर ये सब तक पहुंच पाता है ना। प्लीज बताएं, कौन बताएगा? आज बहुत सारे लोग हैं मेरे। माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी इस चैनल जो ग्रुप चल रहे हैं दीदी, इसका तो कोई बखानी नहीं कर सकता है दीदी, जितना प्रेम इस ग्रुप से मिल रहा है। और क्या बोले दीदी बोले तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या बोले, इतना अच्छा ध्यान करके लगता है दीदी, पर प्रचार नहीं कर पा रहे दीदी। कैसे करे, थोड़ा सा हमको बताइए। आपको मैंने बताया था कि आएंगे, और शायद भावना बन रही है 8 जून के कार्यक्रम की। अच्छा। अगर मुझे आज परमिशन मिलती है, ऑडिटोरियम है, 300 लोगों की कैपेसिटी है, तो जैसे पहले मैं सोच रही थी सिर्फ 50 लोगों को ही बुला पाएंगे, हम 300 लोगों को बुला सकते हैं। आप सब लोग आए और ये जाने कि देखिए उद्देश्य क्या है। पहले मैं ये बताना चाहूंगी, श्री माता जी जो मुझसे कार्य ले रही हैं, और क्लियर होता जा रहा है मुझे मेरा पथ, मेरा जो माँ ने आगे प्रशस्त कर रही है मार्ग, वो ये है कि पूरे विश्व में सबके पास ये पहुंच सके। उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा बहुत सारे मेंटोर्स, तमिलनाडु में, केरला में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। फिर उसके बाद ये हम वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करके वो सीकर्स वहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमको सारी भाषाएं आती नहीं। तो जैसे कोई तमिल स्पीकिंग है, तो वो मेंटोर बनेगा, पहले वो क्लियर करेगा, तो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। वो एक एक अपना क्लियर करता जाएगा, समझता जाएगा, सहज होगा 2.0। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है और विश्वास नहीं है कि ये परमेश्वरी ने कहा है, और यही असली सहयोग है। नहीं तो सहयोग अपूर्ण है। बहुत लोग आते हैं, वो जाते हैं सेंटर, कोई उनको निर्विचारिता भी नहीं आती है। तो ये तो कर्मकांड हो गया। बाकी धर्मों की तरह हमने सहयोग को एक मंदिर की तरह मान लिया, मंदिर आरती की और लौट आए। ये नहीं है सहयोग। सहयोग है जहाँ पे हम सारे डायमेंशंस पार करें, जहाँ पे हम उन स्थितियों में हो कि लोग हमको देख के परमात्मा को पहचान ले। हमें सब परमात्मा को पहचानना, ऐसे हम हो जाने चाहिए। तो उसका पूरा एक हमारा एक वो होगा कि ये लेवल पार हो गया, अब ये लेवल पार हो गया, अब ये, फिर कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं, सहयोग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, फिर उनको उनके इलाके का वो बना दिया जाएगा मेंटोर, कि आप यहाँ के सीकर्स को ये पूरी नॉलेज दें और ये अनुभव दें, ज्ञान और ध्यान दोनों। ये नहीं कि बस खोल देते हैं सब लोग। मैंने देखा हाथ खोल के माँ के सामने बैठ जाओ, व्हाट, उनको अनुभव भी आते हैं तो वो डर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये चक्र थे, ये उठे, ये फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ, दे गेट स्कैर्ड, और वो सहयोग नहीं, मतलब छोड़ ही देते हैं डर के मारे कि ये क्या है, या कुछ ऐसे छोड़ देते कि कोई अनुभव तो आ नहीं रहे, छोड़ो, है ना। तो ये नहीं होने देना है, सबको बटोरना है पूरे। कल मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक फोन आया, उनको मतलब पूरा जीवन हो गया सहयोग में, 45 इयर्स,
और पहली बार अनुभव आया इस सामूहिकता के माध्यम से। और वो इतनी खुश थी, बहुत ओल्ड थी, रिटायरमेंट विलेज में रहती हैं, और बस उनको लगे कि कैसे मुझको वो देख ले और मेरे गले लग जाए। और मुझे भी इतना प्रेम उनकी तरफ बह रहा था। मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, नाम भी शायद अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेम इतना कि बस वो कैसे या तो इंडिया आ जाए या मैं ब्रिस्बेन पहुंच जाऊं। दीदी आपको माँ ने चुनकर माध्यम ही बना दिया ऐसा दीदी। इतना प्यार देने का, सबको बटोर के रखने का। दीदी इस चैनल का बताए ना, हम बखान नहीं कर सकते दीदी। 5 साल का मैं भी सहयोगी थी, मुझे एक भी अनुभव नहीं था दीदी। निर्विचारिता तो एकदम बिल्कुल ही, ध्यान बैठती थी, ध्यान क्या करेंगे कि क्या कौन सा विचार में चली जाती थी, कोई चीज का पता ही नहीं रहता था, ध्यान ही नहीं होता था दीदी। लेकिन अभी जब से मैं जुड़ी हूँ दीदी, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ध्यान जब शुरू हो जाता है ना दीदी, तो इतना निर्विचारिता आ जाता है। जानते हैं ध्यान में तो मैं अंतरिक्ष में गए ना दीदी, तो अंतरिक्ष बोल रहे हैं जाने का, तो ऊपर से मैं उतर ही नहीं पा रही हूँ। जब आप बोले माँ के श्री चरणों में समर्पित करना है, तो मैं समर्पित कर ही नहीं पा रही हूँ। बस ऊपर ही नजारा ले रही हूँ, बस ऊपर का ही नजारा ले रही हूँ दीदी। इतना अच्छा महसूस होता है ना ध्यान दीदी, इतना अच्छा लगता है जो कि कह नहीं सकते हैं दीदी, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुषमा जी। और कोई शेयर करेगा प्लीज? जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी आज मैंने ना, जब आपने बोला ना कि सदाशिव से मिलन हो रहा है, मतलब वहां पे, तो दीदी मैंने देखा कि मैं केदारनाथ पहुंच गई हूँ। और वहां पे जो नंदी है, नंदी के जो सींग होते हैं, उनके, आपने कहा जैसे हम एंटर कर जाएंगे, मैं उनके अंदर चली गई हूँ, कंप्लीट चली गई हूँ। फिर आपने कहा जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं की परिक्रमा कर रही हूँ। और बादलों, मतलब सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा वहां पे, सिर्फ मुझे बादल दिख रहे हैं और एक छोटा सा टाबू टाइप का जिसमें नंदी है, और सिर्फ नंदी के सींग है और कुछ ऐसे बना हुआ है। बस उन्हीं के अंदर मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैंने एंटर किया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दीदी, जब जो मैंने इतना सुंदर महसूस किया, और मैं उसके अंदर से आ ही नहीं पा रही थी। और इसके पहले मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं किया। इट वॉज वंडरफुल, it was completely peaceful, so joyful. Thank you so much दीदी, thank you. मतलब I don't have words to express that gratitude कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। I don't have words, मैं बता नहीं सकती आपको। आज बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर अनुभव था। सारे चक्रों के साथ जितने भी ग्रह थे वो सब घूम रहे हैं, वो सब कुछ मैंने आज अनुभव किया। आज बहुत प्यारा अनुभव था दीदी। थैंक यू फॉर शेयरिंग सुनीता। और आपको पता है ना, नंदी शिव के परम भक्त है, शिव को भी बहुत प्रिय है। वो अपनी आंखों से शिव को हटने ही नहीं देते। कितनी सुंदर बात आपने शेयर की आज। थैंक यू फॉर शेयरिंग सुनीता। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वजह से ये हो पाया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। चलिए और कौन बताएगा? दीदी। हाँ जय श्री माता जी। दीदी आज मुझे ध्यान में काफी अच्छा लगा, लेकिन लेफ्ट साइड से उनकी पकड़ बहुत आ रही थी। ठीक है, कितना समय हो गया आपको? दीदी वैसे मेरे को तो काफी टाइम हो चुका है, लेकिन मैं अभी यहाँ अपनी मम्मी के घर पे हूँ, तो यहाँ पर सहयोग कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों से आपसे जुड़ी हुई हूँ इसमें। मैं सिर्फ अभी यही पूछूं कि हमसे जुड़े हुए कितना समय हो गया? अभी दीदी मुझे ये 3-4 दिन हो गए। देखिए, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये अभ्यास है ना। शक्तियां तो हमको मिल गई, लेकिन हम इन पे, हमें अपने आप को शुद्ध भी तो करना है। हम क्या कर रहे थे, जो प्रथम चरण था सहयोग का, वो ये था कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, जो 5 मई 1970 से शुरू हो गया। कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, कुछ धागे उठे और वो चक्रों को उन्होंने क्लियर किया, और उसके बाद जो बाकी हमारा शुद्धिकरण है वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से, है ना। तो एक तो जो सबसे इजी मार्ग है कि हम
कलेक्टिविटी में बैठ गए और कलेक्टिविटी के साथ साफ हो गए, फिर हम नीचे आ जाएंगे। कब हम एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध होते जाएंगे? जब हम सहयोग का प्रचार प्रसार करेंगे। कितनी उम्मीदें हैं सहयोग से, एक तो कल वो लोगों की बात सुनते सुनते, हाँ डॉक्टर अलका गुप्ता बोल रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सहयोगिनी हूँ। मैंने सुना है आपसे, वो मेरी फ्रेंड ने बात की, उसका कमर दर्द ठीक हो गया और ऐसे किसी का पेट दर्द। तो मुझे खूब ही बीमारियों के फोन आ रहे हैं, दर्द के फोन आ रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ ध्यान में जाना है और निर्विचारिता में हमारे तीनों शरीर क्लियर हो जाते हैं। 3 शरीर कौन से हैं? सबसे पहला दैहिक शरीर, हाथ पैर आंख नाक कान, है ना, पूरे टांगे घुटने, ये हो गया दैहिक शरीर। एक है जैविक शरीर, बायोलॉजिकल बॉडी, जो है इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, जो अंदर से काम करते हैं, स्प्लीन, जो अंदर से काम करते हैं, स्प्लीन, किडनी, लिवर, ये सब आंतरिक शरीर है, ये यानी कि जैविक शरीर, बायोलॉजिकल बॉडी। फिर है हमारा दैविक शरीर, जो परमात्मा ने अपने से मिलने के लिए हमारा शरीर बनाया, जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और इन पे स्थित हमारे सारे चक्र। तो ये जो 3 शरीर है मेरे, ये पूर्णतः शुद्ध कब होते हैं? जब परम चैतन्य मुझ पे बरसने लगता है। और मेरे पूरा जो ये पूरा शरीर किससे बना है? ये पूरा शरीर बना है कोशिकाओं से। और हर कोशिका किससे बनी है ना? जो एटम है उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक और है मिसॉन। मिसॉन जो है वो आदि शक्ति की, जो उसी से हमको हवाएं आती हैं, जो ये कूल ब्रीज हमको मिलती है, मिसॉन के खुलने से मिलती है। और मिसॉन सिर्फ आध्यात्मिक लोगों का ही जागृत हो पाता है, ठीक है? तो जब परम चैतन्य हमारे ऊपर बरसता है और हमारा मिसॉन खुल जाता है, तब वो समय है कि हमारे तीनों शरीरों में आराम आने लगता है। दैहिक, दैविक, जैविक, तीनों शरीरों में हमको आराम आने लगता है, शुद्धि होने लगती है। क्योंकि चक्र है एनर्जी सेंटर्स। अब जैसे मेरा विशुद्धि चक्र है, अगर ये सही नहीं है ना, घड़ी घड़ी मुझे जुकाम होगा। और अगर ये सही है, मुझे जुकाम होगा भी तो अपने आप भाग जाएगा। दांत का आपको तकलीफ ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी अगर विशुद्धि चक्र है, क्योंकि ये अपने आसपास के सारे अंगों को एनर्जी दे रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप जो कहते हैं मेरा लेफ्ट पकड़ गया, राइट पकड़ गया, इससे प्लीज बाहर आ जाओ। डोंट ट्राई टू सॉल्व इन सहज योगा 2.0। इवॉल्व, ऊपर उठिए। जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, ये परम चैतन्य बाकी क्लीनिंग करेगा। पहले युग में हमारी कुंडलिनी जागृत कर दी ना, जो श्री माता जी ने अपना कार्य कर दिया। अब हमको अपने अभ्यास से, ये माँ से प्रार्थनाओं से माँ को प्रसन्न करना है। माँ प्रसन्न तो सब देवी देवता प्रसन्न, देवी देवता प्रसन्न तो ग्रह प्रसन्न, ग्रह प्रसन्न तो मेरे सारे चक्र एकदम खुल जाएंगे। अगर मुझे अपने चक्र फील नहीं हो रहे ना, वो सूक्ष्म एकदम ऐसे करके, तो नहीं हुआ काम। जब ये फील होने लगेंगे, फिर बाद में ये फील होने भी बंद हो जाएंगे। जब ये पोषित हो जाएंगे, ये भी नहीं फील होंगे, फिर आप बिल्कुल देह शून्य हो। ये पूरी देह आपकी शून्य है। आत्मा आपकी उठ गई ऊपर की ओर, वो अंतरिक्ष में विचरण कर रही है, वो डायमेंशंस में, आयामों में विचरण कर रही है ना? तो उस समय इनका अनुभव कैसे आएगा? ये हमने पोस्ट भी बनाई थी श्री माता जी,
तो ये आपको समझना है, सूक्ष्मता से समझिए। दीदी मेरे ये हो गया, ऐसे मत करिए। हमारे YouTube चैनल्स देखिए और उससे उनको फॉलो कीजिए, ध्यान को फॉलो कीजिए और समझिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अपने अटेंशन को आत्मा में लाना है। आत्मा में अटेंशन जैसे आया, एकदम स्ट्रांग हो गया, मतलब जहां जाएगा शुद्ध कर देगा। अब ये अटेंशन, मेरे गले में दर्द है, यहाँ ले जाओ, मेरे सर में दर्द है, यहाँ ले जाओ, जो करो इस अटेंशन का, लेकिन इसको तो स्ट्रांग करो। ये तो कमजोर हो रहा है, देख रहा है तो रिएक्ट कर रहा है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, सुन रहा है तो ये ऐसा क्यों, ये चटता है तो गंदी है, अच्छी है सब्जी, टेस्टी है, टेस्टलेस है, रिएक्ट करता रहता है, वेस्ट हो रहा है चित्त। चित्त को हर जगह से हटा करके आत्मा में रख लो, एकदम स्ट्रांग कर दो अपने चित्त को, फिर जहां भी जाएगा वहां कारगर है, तुरंत उसको शुद्ध कर देगा। मुझे तो डॉक्टर ही बना दिया कुछ लोगों ने। दीदी उनका पेट दर्द ठीक हो गया आपके साथ ध्यान करने से, दीदी मेरी कमर का दर्द ठीक कर दो। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, ध्यान कीजिए, निर्विचारिता में ये अपने आप घटित हो। ठीक है, प्लीज ये मैं सबको बता रही हूँ। हाँ माता जी दीदी। जय श्री माता जी। हाँ जी बताइए। दीदी आप ये वीडियो देखकर ना बहुत नॉलेज मिल रही है, ये मुझे नॉलेज थी ही नहीं। जब मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग के 6 मंथ मुझे अनुभव हुआ है, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जब आप अंतरिक्ष में बोलते हो कि मंगल ग्रह से आप एनर्जी लो। हाँ, तो वो मेरे साथ हुआ है, पर मुझे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वहां से ऊपर से लाइट आई थी मेरी बॉडी के अंदर, पर मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि करना क्या है। तो अब वो 6 मंथ तक ही रहा था, और वाइब्रेशंस मुझे अब भी आती हैं, पर मुझे नॉलेज नहीं थी। पर आपकी वीडियोस देख देख कर मुझे बहुत नॉलेज हो रही है। और आज भी आज माता जी का पूरा स्पीच आत्मा के ऊपर था, मतलब लेफ्ट साइड अपना लेफ्ट साइड लेकर जाओ अपने चित्त को। तो आज मेरा चित्त लेफ्ट साइड ही था, हार्ट में। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। बस ये होता है जब ये ऊपर आने लगता है ना, ये चीज भारी होती है, पर यहाँ पे मेरे गोल गोल घूमता रहता है। हाँ, ऐसे जितना हमारा तो फिर ये अपने आप दूर हो जाएगा। बस अभ्यास करते रहे कि हेलो, और कोई शेयर करेगा प्लीज। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। बहुत ध्यान करके दीदी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप जी, आज पहली बार आपका जो जूम वीडियो से ध्यान किया सेशन से, और बहुत दिन से बिंदु अर्ध बिंदु और ये वलय की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज जो है काफी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी कुछ अच्छा फील हुआ। और चित्त भी जब से वीडियो आपके देखने चालू किए हैं, तो चित्त भी हल्का हुआ है। तो लेकिन ये है कि जब पूरा चित्त हम आत्मा पे ले जाएं, तो उसके लिए कुछ बताइए कि हम पूरा चित्त अपना जो है आत्मा पे हर समय रखना चाहते हैं। इसी को चित्त निरोध कहते हैं। आप जी, ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। जो मस्तिष्क है, इसको आदत है कमांड लेने की। आप कमांड दीजिए, सब जगह से हटा करके अपने चित्त को, हर व्यक्ति जो भी तंग कर रहा है, जो भी परेशानी है, सब जगह से हटा दो और चित्त को यहाँ ले आओ। जी। बोलो आप। ये कई लोग तो कहते हैं कि आपकी आवाज हमारे कानों में गूंजती है, तो फिर वैसे ही हम करते चले जाते हैं, है ना। तो आप इसको ध्यान करते रहो हमारे साथ, ये हो जाए। अगर आज अनुभव आ गया तो आपको और अनुभव आने वाले, ऐसा मेरा मन। और असली सहयोग यही है, जो माँ का विजन है वो यही है कि हम लोग आपस में आत्मिक स्तर पे हमारा सर्किट पूरा हो। और हम लोग क्या है कि कर्म कांडों में फंसे हुए हैं,
उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। उसके लिए कुछ गाइड करिए कि जो हम जहाँ पे जिससे मिले उसको किस प्रकार से गाइड करें कि वो भी के लिए 8 जून को दिल्ली में आप सब लोग आइए। आई एम इनवाइटिंग एवरीवन, आप सब आइए। यहाँ पे खुशी माता जी के वीडियोस भी हम चलाएंगे। मैंने एक ऑडिटोरियम किया है और उसमें दिखाया जाएगा कि असली सहयोग क्या है। ठीक है, तो आप कहाँ से? हम उन्नाव से हैं। पापा जी के जो घर है उसी जिले से हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और बहुत दिन से दीदी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताने की कि इस तरीके से करो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए भैया, ये तभी हो जब हम अपने आप एकदम स्ट्रॉन्ग हैं। जी जी। आप ये समझ लीजिए, जो 8 जून को कार्यक्रम श्री माता जी रखवा रही हैं, तो फाइनल हो जाए तो आप लोग सब आने का प्रयास करें। तो जी जी, पहले हमें खुद स्ट्रॉन्ग होना है। जी जी। अगर हमें एक तूफान में एक पतले पत्ते की तरह, एक कमजोर पेड़ की तरह गिर गए, तो हम दूसरे को क्या आश्रय देंगे, छाया देंगे, क्या फल देंगे? क्या हम कुछ नहीं दे सकते किसी को। पहले हमको खुद स्ट्रांग होना है। हमको देखकर अब लोग सहयोग में आएंगे। जी, जैसे दीदी आपके जो अनुभव है, जो आप ध्यान कराती हो, जो भी अंदर से आता है, लोगों को बताओ तो वो उस चीज को उतनी जल्दी अंदर ले नहीं पाते हैं। सत्य को खिलाओ, देखें करके इसको जरा सा, ये कोई विशेष चीज है। ये हम सिखाएंगे आपको 8 जून कि कैसे। जी जी जी। जय श्री माता दीदी। और कौन शेयर कर? माता जी दीदी। हाँ जय। बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा लगा ना दीदी। मतलब मैं लगभग 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ आपके YouTube से। तो उसमें जो आपका पुराना आता था वो मैं पूरा ध्यान करती थी घर पे। तो बहुत वाइब्रेशन और घर में भी बहुत अच्छा फील होता है। श्री माता जी से मैंने बोला कि माँ मुझे इसमें जोड़ दीजिए कि मुझे दीदी से मिलना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दीदी से मिल करके। और सेंटर में तो लगातार जाते हैं, बहुत काम करते हैं, वहां पर इतने वाइब्रेशन नहीं आता और नहीं इतने लोग हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों इस तरीके से। तो मुझे आपसे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है। मैं आगे भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ और भी जाए और लोगों को भी, उत्तराखंड के लोगों को भी जोड़ना चाहती हूँ कि दीदी के आप जो है वीडियो देखिए। तो मुझे दीदी पता नहीं क्यों, मतलब जो परमेश्वरी से मैंने मांगा था वो मुझे मिला है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मुझे मिलता ही रहे आपका प्यार और श्री माता जी का प्यार और चैतन्य। मिलेगा जरूर। बिल्कुल दीदी। और थोड़ा सा ना दीदी, मेरा तो लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम था। वो वैसे तो जब से आपका ध्यान कर रही हूँ तब से तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जो रात में मुझे जो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम होती है ना दीदी, मैंने मटका ट्रीटमेंट भी कर दिया, नींबू वाला भी कर दिया, पता नहीं क्यों वो मतलब इतना परेशानी मुझे होती है लेफ्ट साइड से, क्योंकि मुझे वो शादी से पहले से है ना वो प्रॉब्लम। आप, हाँ मेरी आपसे बात भी हुई थी। आप भूल जाओ, आप सिर्फ इस ध्यान को, अंतरिक्ष के ध्यान को करो, सब अपने आप गायब हो जाएगा। बिल्कुल दीदी, मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि श्री माता जी के ही द्वारा मैं ठीक हूँ और ये वाइब्रेशन मुझे सभी लोग दें कि माँ इसका स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। मेरा ना स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर भी लो रहता, मतलब क्या मतलब ऐसा हो जाता है, क्या कमी मेरे अंदर है जो श्री माता जी की कृपा से ही दूर हो जाए और आप लोगों की दुआ से ही मैं ठीक हो जाऊं। रुक जाइए, बात सुन लीजिए। मैं क्या बता रही हूँ उसको भी तो सुन लीजिए। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, इतना चित्त अपनी नेगेटिविटीज, अपनी पकड़ पे इतना चित्त देना अच्छी बात नहीं है। वो नेगेटिविटी और स्ट्रांग हो जा रही है आपके चित्त से। उसको इग्नोर करो, उसको हटा के, ये नहीं सब मुझ पे चित्त दे, आप सब पे अपना चित्त बांट दो ना, उससे ज्यादा फायदा होगा, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। हमको साइंस समझना है सहयोग। सहयोग का साइंस ये है कि जब हम कलेक्टिविटी में बैठे हैं, किसी का हाथ चक्र सुंदर है, किसी का विशुद्धि सुंदर है, किसी का आज्ञा सुंदर है, किसी का मूलाधार सुंदर है, तो जो ऊर्जा होती है ना ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो कलेक्टिविटी में हम दूसरों के चक्रों से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट, जैसे भैया बताते,
हम सब एक जोड़ देते हैं, कुंडलिनी सब एक साथ हो जाती है, और जिसके चक्र को जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो मिलता जाता है। एक तो ये बात हो गई कि आपने अपनी बीमारी भी बांट दी, अपनी स्ट्रेंथ भी बांट दी, जो जिसके पास है उसने बांट दिया। जिसने अपना दुख बांट दिया उसका दुख कम हो गया, जिसने अपना सुख बांट दिया उसका सुख भी थोड़ा सा मोमेंटरीली डाउन आएगा। जब मुझे नहीं पता था और जब मैं पूजाओं में जाती थी मेरा स्तर डाउन हो जाता था, तो मैं सोचती थी कि सब तो कहते हैं पूजा में बहुत सुंदर हो जाता है और मैं तो डाउन होके आती हूँ हर पूजा में, क्योंकि जब मेरे चक्रों की स्थिति हाई थी तो वो दूसरों को मिल जाते थे, मेरी पावर दूसरों को मिल जाती। तो पूजा से हमें ये बेनिफिट होता है, हमारे हमें वो कलेक्ट के माध्यम श्री माता जी सबको एक साथ कर देती। अब रही बात ये, इससे भी बेहतर और क्या हो, इससे भी बेहतर कि हम अपने आप को, जब हम सहयोग फैलाने लगेंगे, हम अपने आप को फैलाने लगेंगे तो देवी देवता हमारी मदद को आते हैं। और ये वो टाइम है कि हमारे सब चक्र, हमारा उन पे चित्त भी नहीं है और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अपना चित्त हटाइए वहां से, लेफ्ट, अरे पकड़े रहो तो पकड़े रहोगे, रहेगी हमेशा लेफ्ट की प्रॉब्लम, पकड़े हुए क्योंकि आप नहीं छोड़ रहे। पकड़ क्या है कि आपने पकड़ लिया है, आप उसको छोड़ो, जाने दो भाई। लेफ्ट की प्रॉब्लम, चक्र की प्रॉब्लम छोड़ दो, आप ऊपर उठो, आप सहयोग फैलाओ, बजाय इसके कि आप कह रहे हो कि मुझ पे चित्त दो, आप दूसरों पे चित्त दो, आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो, आपका भला अपने आप हो जाएगा। देवी देवता आ जाएंगे फिर आपकी सहायता करने, क्योंकि आप दूसरों को परमात्मा से जोड़ने का काम कर रहे हो, तो देवी देवता आपकी मदद करने लगेंगे। बहुत इजी है सहयोग समझना, जिसको ये बात समझ में आ गई ना उसको सब आपको सहयोग के लिए कार्य करे बिना आपकी क्लियरेंस नहीं हो सकती। कल के मेरे सारे शॉट्स इसी बात पे हैं, इसी बात पर। सिर्फ सहयोग फैलाने से हम क्लीन होंगे, क्योंकि तभी परमात्मा हमारे को शुद्ध करेंगे, हमको तैयार करेंगे ताकि हमारे दिए का प्रकाश चारों तरफ फैले। ठीक है। अच्छा, अब रही बात ये कि मेरे को मेरे पति को भी नहीं देते है ना भाई, पति को ब्लेम नहीं करो, ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कोई भी पति कैसे चाहेगा, आप घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, आपके घर में खाना नहीं बना हुआ, बच्चों को खाना नहीं मिला हुआ, कोई सर्वेंट्स को देखने वाला नहीं, कोई कपड़े धो के रखने वाला नहीं, आप जिम्मेवारियों से कैसे भाग सकते हो? ये तो परमेश्वर ने नहीं कहा है ना। तो हमको गृह लक्ष्मी तत्व तो छोड़ना ही नहीं है। तो आप डोंट ब्लेम योर हस्बैंड, डोंट ब्लेम योर हस्बैंड एट ऑल, डोंट ब्लेम एनीवन, ये बिल्कुल गलत है। आप अब श्री माता जी ने इतना सुंदर मार्ग दिखा दिया, और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा ना, ये पूरे विश्व में सहयोग फैला सकेगा। मेंटोर बन जाएंगे, तमिलनाडु के, तेलुगु के, यहाँ हर भाषा को बोलने वाले बन जाएंगे, मेंटोर्स बनाए जाएंगे। तो पहले वो उनको पूरा मेंटोर को, जैसे अभी जो 8 जून का कार्यक्रम है वो भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम आप समझो, कि सहयोगियों को मजबूत करना कि वो किस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। जैसे आप इसके माध्यम बनोगे, आप योगदान दो, मैं मेरी बीमारी ये क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं होगा। सहयोग के बाद भी आप सूखे रह जाओगे। दूसरों के लिए सोचो यार, उसको मतलब दूसरों को परमात्मा से जोड़ने का सोचो। जो सहयोगी बेचारे भटक रहे हैं, जिनको वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, निर्विचार नहीं हो रहे, 25, 30, 35, 40 साल हो गए, और किस उम्मीद में अभी भी सहयोग नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जब उन्हें सहयोग मिला था उनको अनुभव आए थे। बिल्कुल दीदी, हाँ, सहयोग मिला तब अनुभव आए थे, और अब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आप सहयोग का काम नहीं कर रहे। देवी देवता आपको तैयार क्यों करेंगे? आपका क्यों विशुद्धि अच्छा करेंगे?
कि बोलो तो सारी दुनिया चुप, बस आप ही बोल रहे हैं। बिल्कुल दीदी। है ना? तो ये कृष्ण जी की कृपा मिलेगी जब आप सहयोग करोगे। माँ सर ज्ञान अंदर से बहे। जी दीदी। और परमेश्वरी हर कुछ देख रही है। परम चैतन्य को सब मालूम है हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। हम किसी को झूठ नहीं कि झूठ किसको बोलना। ये सांसारिक जीवन, ये आत्माओं का खेल है। आत्माएं सब पता है, आत्मा को सर्वज्ञानी है। आत्माएं सब पता है परमेश्वरी को। परम आत्मा, परमात्मा कौन है? सुप्रीम सोल। और हम क्या है? उनका प्रतिबिंब। हमारे पास भी उनकी समझ शक्तियां हैं। हम भी सब पहचान लेते हैं कौन झूठा, कौन सच्चा, कौन नाटक कर रहा है, कौन बस बोलने के लिए बोल रहा है। मैं बहुत सहयोग का काम को मैं बड़ा ये क्या, हाउ मेनी सहयोगीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय यू? टेल मी, बताइए, लिख करके दीजिए कि 10 लोग दीदी एकदम गहरे सहयोग में उतरे। आप तो खुद ही गहरे नहीं है। पॉइंट तो ये है, आप क्या किसी को गहराई में उतारेंगे? पॉइंट तो यहाँ पे डिफीट हो गया ना आपका। खुद तो पकड़ है और आप कह रहे हैं नहीं दीदी मैं सहयोग का बहुत काम करती हूँ। क्या? पहले खुद को शुद्ध कीजिए। लोगों को जा करके उनको पूरा पहले अपना पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए, अनुभव कीजिए। इस सामूहिकता के माध्यम से हम बहुत स्ट्रांग लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिनको ज्ञान भी है, ध्यान है, अनुभव है। उनको पता है अर्धबिंदु चक्र, उनको पता है बिंदु चक्र। वो अनुभव कर सकते हैं कि ये कैसे घूमता है। जब मैं अनुभव कर रही हूँ और मैं आपको करा रही हूँ तो आपको अनुभव आ रहा है। आप किसी को बता रहे हो उनको अनुभव नहीं आ रहा, वो क्यों आपकी बात मान लेंगे? तो ये जो हमने कार्यशाला रखी है, वर्कशॉप रखी है, इसको आपको जरूर, मैं कोशिश करूंगी कि इसको हम YouTube से लाइव भी करने का प्रयास करें। ठीक है? आप और कोई अभी कुछ शेयर करना चाहेगा? दीदी जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी बहुत धन्यवाद, आप विदेशी भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। मेरी चित्त में आया था कि श्री माता जी घटित करा दे और आज ने आप करवा दिया। लोग मिलते भी रहेंगे और हम लोग और स्ट्रांग बनते जाएंगे। जितने हम स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट बनेंगे ना, उतना ही परमेश्वरी हमको यूज करेंगी, अपना यंत्र बनाएंगी, उतना ही ज्यादा। अगर हम खुद ही कमजोर पकड़ लिए बैठे हैं तो हमको कोई यंत्र नहीं बनाएंगे परमात्मा। अब विश्वव्यापी स्तर पे कार्य हो रहा है। अब देखिए, ये कोई सहयोगी इतना समय देता ही नहीं है, किया ही नहीं। बहुत सहयोगी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, लेकिन अपना जीवन समर्पण नहीं करते ना लोग। सांसारिक की तरफ ज्यादा चित्त रहता है। तो अगर ये कार्य परमेश्वरी मेरे परिवार के माध्यम से ले रही है तो परमेश्वरी चाहती होंगी कि जरूर कलेक्टिविटी से, क्योंकि अब ये बहुत बड़े लेवल पे कार्य हो रहा है। चलिए, ओके, जय श्री माता जी एवरीवन। अब परसों शाम 6:30। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। वाले दिन भगवान गणेश को